नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मैं हूं मनोज रस्तोगी। आज हम बात कर रहे हैं जुडिशरी में चल रही एक डिबेट की। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को लेकर जो बहस चल रही है जुडिशरी में, उस पर हम बात करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में एक सेमिनार में जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जोसेफ कुरियन, जस्टिस रेखा शर्मा और जुडिशरी से जुड़े कुछ और दिग्गज लोगों ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जोसेफ कुरियन दोनों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच मैनेजमेंट है, जो मास्टर ऑफ रोस्टर जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के, उसको लेकर उनकी ओपिनियन है कि ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम 3 पहले न्यायाधीशों की कमेटी को इसका अधिकार होना चाहिए। उसके उन्होंने कारण बताए। जस्टिस रेखा शर्मा ने भी कई शार्प कमेंट किए और ये तक बात निकली कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो घटी है। Cases were going before a particular bench. Cases which, were sensitive, so to speak, were going before a particular bench. And as luck would have it, that the presiding judge in that bench was not a particularly senior judge. I think he was at that time number 10 or number 12. So starting from the Chief Justice to at least number 9 or number 11, senior most judges were being overlooked for listing of these sensitive cases. Why is that happening? That is the question. And has there been a change since then? That is the question I think that we need to ask ourselves now. Journalist wants bail. The case is listed the same day, maybe in the evening. Somebody has been granted bail. The prosecution says no, the grant of bail by the High Court is wrong. So a special bench sits on a Saturday and stays that order, which is very, very unusual. But anyway, stays that order so that this person cannot come out of jail. I am referring to the cases of Arnab Goswami and Sai Baba. Why should that happen? So the timing of the listing of the case is very, very important in some instances. One of the cases that has been mentioned is that of Umar Khalid asking for bail. Not listed for a long time, I think more than 2 years or so. 13 adjournments. Ultimately, the lawyer said, we want to withdraw the case. Why? Because as Justice Kurian Joseph mentioned, they knew what the result is going to be. And they knew what the result is going to be because it was apparently listed before a particular bench. And they knew what the fate of that case is going to be. So these are issues, which are live and which are affecting the quality of justice. And that is why there is this perception going around that, listen, there is something wrong. Somebody has the power to do something. Why is that power not being exercised in a fair manner, in a reasonable manner, and in a just manner? There is a perception of a remote control in the Supreme Court. So there is a perception in the minds of the public that the master of roster business is not handled the way it should be handled. So my first suggestion on that master of roster business is that it should be done at least by a 3. And on the constitution of the benches, particularly very important constitutional matters, the diversity should be reflected. Regional, gender, at least these 2. In Supreme Court, it's a well-known thing that, the advocates and record know. They will not choose a senior till they know of the constitution of the bench. After seeing the constitution, they will go for an appropriate senior for the bench. That's known to everybody. In all other high courts and the national institutions, the motto is
Satyameva Jayate. But our Supreme Court has a different motto. Our Supreme Court's motto is Yado Dharma Stado Jaya. I don't know why that different motto is adopted by the Supreme Court of India. Because to me, for the Supreme Court, the guardian of the Constitution, truth is the Constitution. Dharma is not always the truth. Is our judiciary putting down who deserve to be pushed down and putting up who deserve to be pulled up? Or is it just becoming gilded tom of a failed talent? The question is not who is making them dance. The question is who is dancing and why. Why have things come to such a pass? The government is not entirely to be blamed. Somewhere down the line, the Supreme Court allowed its authority to dilute. The Supreme Court declined to hear an Article 32 petition involving the arrest of Chief Minister of a state who alleged that he was arrested on no evidence and with the sole aim of destabilizing his duly elected government. The bench observed, "Why have you come directly here?" The observation was made notwithstanding the fact that many a times in the past, Supreme Court has been entertaining Article 32 petitions depending upon the urgency and gravity of the matter. And more importantly, the observation has come notwithstanding the golden words of B.R. Ambedkar, the architect of the Constitution, describing Article 32 as the heart and soul of the Constitution. Is Article 32 be treated as a dead letter? Is that while a powerful person gets bail on an experimental basis, men like Umar Khalid are withering away, unwept, unsung, and unheard, and so fed up that coming out of the corridors of the Supreme Court is itself considered a relief. While a journalist spends time in jail for the crime of performing his duty, an old and ailing man, unable to even sip water, is denied basic medical aid and is made to suffer and die behind the bars. Having said all this, I will be unfair to the roster system and to its master by not pointing at least 3 pronounced advantages of the roster system, and which fortunately or unfortunately have already become public, and they are as follows. Number 1, the master of roster can constitute a bench of his own choice and himself preside over it even in a very personal matter. Number 2, by intelligently making use of that power, he can assure himself, even after his retirement, a cozy job like a seat in the Rajya Sabha or governorship in sub-state. 3, by intelligently using his power, he can equally benefit his very worthy and dearest colleagues. When a judgment like in the electoral bond matters comes protecting the rights of the citizens, they are not only pleasantly surprised but feel so relieved as to hail and thank the Supreme Court even when it has only performed its constitutional duty. And when it does that, it neither needs applause nor brickbats. But the fact that such was the reaction shows how much the Supreme Court has lost in terms of credibility in the field of justice delivery system. इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। जस्टिस गोविंद माथुर को भी उस सेमिनार में हिस्सा लेना था, लेकिन वो किसी कारणवश उस सेमिनार का हिस्सा नहीं बन पाए। तो लीगल ऑब्जर्वर के साथ एक विशेष बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में जस्टिस गोविंद माथुर ने उन सारे सवालों का, उन सारे मुद्दों का जवाब दिया। आज हमारे साथ हैं श्री गोविंद माथुर जी, जस्टिस गोविंद माथुर जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जुडिशरी में उनका एक बहुत सम्मान है, लेखक भी हैं और
जुडिशरी और समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अक्सर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो हम आज जस्टिस माथुर, सबसे पहले आपका स्वागत है जस्टिस गोविंद माथुर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो जस्टिस माथुर, इस समय देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा जो एक फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दिया, चुनावी बॉन्ड को लेकर दिया, जिसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, और फिर चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन था वहां सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की दखलंदाजी, जिस तरह का फैसला लिया, उसको लेकर के देश में काफी प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ जनता के बहुत सारे नुमाइंदे, बहुत सारे लोग इसको न्याय की जीत के रूप में देख रहे हैं कि संविधान सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के तौर पर, कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी से जुड़े जो दिग्गज लोग हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस शामिल हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस शामिल हैं, उनके बीच भी एक डिबेट शुरू हुई है। हाल ही में कुछ बहुत दिग्गज लोग, जिसमें जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जोसेफ कुरियन, रेखा शर्मा जी और भी कई दिग्गज लोग शामिल हैं, उनके इस तरह के बयान सामने आए कि जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गिरती साख, सुप्रीम कोर्ट के घटते प्रभाव और सुप्रीम कोर्ट में बेंच मैनेजमेंट, बेंच फिक्सिंग, रिमोट कंट्रोल, ऐसी काफी बातें सामने आई हैं। तो मैं लीगल ऑब्जर्वर में आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? मनु जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे मेरी बात कहने का ये अवसर दिया। इलेक्टोरल रोल का फैसला हो या चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन वाला फैसला हो, ये दोनों ही जजमेंट बहुत स्वागत योग्य हैं। और जहां तक आपने जो मुख्य विषय जिस पे आपने बात करनी चाहिए, अगर इस देश के प्रतिष्ठित न्यायविद, अगर इस देश के भूतपूर्व न्यायाधीश अगर ये कह रहे हैं कि बेंच मैनेजमेंट को लेकर के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि इसमें कुछ रिमोट से कुछ हो रहा है, तो मैं इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकता। निश्चित रूप से उन्होंने जो अनुभव किया है तो उसका कहीं न कहीं कुछ महत्व होगा। और इस चीज को देश के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुझे लगता है कि उनके लिए उचित होगा कि वे जो भी संबद्ध पक्ष हैं, बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है और भूतपूर्व न्यायाधीश भी हैं, उनसे इस विषय में चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा संदेश क्यों जा रहा है कि यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी कोई गाइड करने वाला संविधान के अतिरिक्त कोई हो सकता है। ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में जहां विधि का शासन है, यहाँ पर कोई भी ऐसा संदेश जिसमें ये जाए कि संविधान से अतिरिक्त कोई चीज और हो सकती है, वो नहीं जाना चाहिए। मैं भी आपके द्वारा ये आग्रह करना चाहूंगा मुख्य न्यायाधीश से कि इस बात की पूरी तरह से ध्यान रखा जाए कि ऐसा संदेश ना जाए, और इसके लिए आवश्यक हो तो वो सभी पक्षों से इस सिलसिले में बात करें और अनुभवी जो न्यायाधीश हैं उनसे भी इस सिलसिले में चर्चा की जाए। आपका बहुत लंबा जुडिशरी से जुड़ा अनुभव है, आप इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण जो कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे। क्या आपने कभी रिमोट कंट्रोल या बेंच फिक्सिंग या इस तरह के किसी अनुभव से आपका साबका हुआ, आप कभी गुजरे, ऐसा कोई दबाव आपने अपने उसमें देखा? ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को मेरे जीवन में कभी इस तरह का कोई अवसर नहीं आया कि किसी ने किसी तरह का भी कोई हस्तक्षेप, कोई दखल करने का प्रयत्न किया हो। मेरा मानना यह भी है कि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मेरा ही नहीं, इस देश के अंदर सामान्यतः न्यायपालिका का इतना सम्मान किया जाता है, और सम्मान से तात्पर्य यही है कि उसके कार्यों में दखलंदाजी नहीं की जाती है। मेरा पूरा भरोसा है कि आज भी स्थिति ऐसी ही होगी, सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जाती होगी, लेकिन जनता में इस बात का एक स्पष्ट संदेश भी जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अतिरिक्त और किसी से गाइड नहीं होता है, और वही संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण कस्टोडियन है। ये संदेश भी जाना चाहिए। लेकिन मुझे, जहां तक मेरा निजी सवाल है,
मेरे पर किसी प्रकार का दबाव कभी नहीं आया। मैं इसके लिए कार्यपालिका और विधायिका उनकी ओर से कोई दबाव कम से कम मेरे पर कभी नहीं आया। मुझे वरिष्ठ न्यायाधीशों से कुछ विषयों पर चर्चा होने पर निश्चित रूप से गाइड किया गया और वो मैंने उनके अनुभव से सीखा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कोई दबाव मेरे पर डालने का प्रयत्न भी किया हो। कम से कम मेरे को ऐसा अनुभव कभी नहीं। अच्छा, जिस सेमिनार में आपको भी जाना था, आप किसी कारणवश नहीं जा पाए, उसी सेमिनार में ये विचार सामने आए बहुत सीनियर लोगों के तरह जरिए कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनका कहना है कि बेंच के गठन में एक व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं होने चाहिए। और ये विचार वहां आया कि कम से कम 3 जो फर्स्ट जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कमेटी को बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार होना चाहिए। और जो वक्ता थे, रेखा शर्मा जी थी, मधुर लॉकर जी थे, या जोसेफ कुरियन साहब थे, सबकी एक सामूहिक चिंता थी कि एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होने से उसके काफी दुष्परिणाम दिखाई दिए हैं। लोग अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी उससे ड्रॉ करते हैं, दूसरी चीजें भी करते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, मैं किसी प्रकार के कॉलेजियम सिस्टम से मिलते जुलते सिस्टम को रोस्टर बनाने के लिए मैं उसको उचित नहीं समझता हूं। मैं मानता हूं कि ये चीफ जस्टिस का विवेक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों चीफ जस्टिस सेंट्रिक कोर्ट्स हैं और इनके अंदर उचित प्रशासन के लिए चीफ जस्टिस का ये विशेष अधिकार रहना चाहिए। हाँ, ये स्वयं चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अपने वरिष्ठ न्यायाधीशों से आवश्यकता अनुसार राय ले ले और अपने विवेक का जो भी उपयोग करे, वो उनकी एक जुडिशियस ओपिनियन ले, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी पूरी लेकर के करे, उसको सभी न्यायाधीशों को साथ लेकर के चले। ये चीफ जस्टिस के खुद की कार्यशैली पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम कोई कॉलेजियम इसके लिए भी बना देंगे, रोस्टर बनाने के लिए भी, तो मेरे को लगता है कि न्यायिक प्रशासन बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है, उसके अंदर भी जब 3 जने या 5 जने जब भी मिलकर के बैठते हैं, मेरा अनुभव 3 जनों के कॉलेजियम तक का रहा है, तो वह बहुत आसान नहीं होता है। हमें निश्चित रूप से चीफ जस्टिस के विवेक पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, उसकी कार्यशैली के लेकर के हम इस तरह की व्यवस्था करें कि वो एक ऐसा रोस्टर हमेशा बने जो हमारे न्यायिक प्रशासन को और अधिक मजबूत करे, लोगों का भरोसा उसमें मजबूत करे। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोसेफ कुरियन साहब ने कही, आप तो चीफ जस्टिस रहे हाई कोर्ट, उनका कहना है कि देश के तमाम हाई कोर्ट और जो दूसरी संस्थाएं हैं, उनका मोटो है सत्यमेव जयते। लेकिन वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो यदा धर्मस्य है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म जो है वो सत्य नहीं होता। उनका आग्रह है, उन्होंने ये डिमांड की है चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है उसको भी सत्यमेव जयते करे। वो कहते हैं कि धर्म हमेशा सत्य नहीं होता है। देखिए, जहां तक मैं धर्म का अर्थ मैं समझता हूं, मैं धर्म को कर्तव्य से, अपना जो कर्तव्य की पालना है उससे जोड़ता हूं। और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हमेशा सत्य बोलूं, सत्य की विजय हो, इसी में विश्वास करूं। इसलिए मैं अगर शब्द जब धर्म को लेकर के भी जब बात कही जाती है, तो मैं यही मानता हूं कि मेरा कर्तव्य हो, न कि किसी विशेष संप्रदाय या धर्म, किसी विशेष उससे नहीं। मैं अपने कर्तव्य से मानता हूं कि मैं कर्तव्य का निर्वहन करूं, और उसके लिए जब कर्तव्य के निर्वहन की बात होगी तो उसमें सत्य की विजय भी होगी, न्याय की विजय भी होगी। जी, इसलिए मेरे को इन शब्दों से बहुत ज्यादा आपत्ति मेरे को नहीं लगती। ठीक, एक आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन दिनों रिटायरमेंट के बाद आप राजस्थान में ही रहते हैं। कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, तो आपके यहाँ जो एक मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब, उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था। उन्होंने कहा कि साहब, इतना भयंकर भ्रष्टाचार है जुडिशरी में कि वकील जो लिख के ले जाते हैं वो फैसला हो जाता है। इस पर चूंकि आप राजस्थान से आते हैं, क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में वाकई इस कदर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जब ये बयान दिया था, मैंने उसी वक्त उनका तत्काल शायद सबसे पहले प्रतिवाद किया था। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि छोटे मोटे एब्रेजन्स हो, कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है, लेकिन आज भी इस देश की पूरी जनता का भरोसा न्यायपालिका में है।
और हमें कोई ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिसमें किसी एक वक्तव्य से लोगों का भरोसा इस न्यायपालिका में, इस महत्वपूर्ण संस्थान में टूटे। अगर मुख्यमंत्री जी को किसी प्रकार की कोई जानकारी थी तो उन्हें यह बात मुख्य न्यायाधीश से बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि अखबार में एक कैजुअल सा, एक बहुत ही चलते चलते एक स्टेटमेंट दे दें। ये उनकी पद की गरिमा के उपयुक्त नहीं था। उसके लिए मैं इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का हमेशा विरोध करता हूं। मेरा यह भी मानना है कि न्यायपालिका के अंदर जिस ढंग से उन्होंने कहा, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। कुछ यस, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है कि कई ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज हम लोगों के अंदर आ रही है, जजेस में भी आ रही है, न्यायपालिका में भी आ रही है, और उसको चेक करना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से न्यायपालिका में लेना चाहिए, इसके केस मैनेजमेंट के लिए, वर्क फ्लो के लिए, सब चीजों के लिए। लेकिन जो एक प्रवृत्ति चल रही है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुकदमों की बहस कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये कहीं कहीं हमारी संस्था को कमजोर करेगी, क्योंकि इससे एक बार डेवलप होना, एक संस्था का जो सामूहिक चरित्र है उसके ऊपर कहीं नुकसान पहुंचेगा, और ये अल्टीमेटली भ्रष्टाचार की ओर से की ओर ले जा सकता है। इसलिए जहां तकनीकी का अन्य चीजों में पूरा उपयोग लेते हुए खुली अदालत वह होनी आवश्यक है। निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार के बढ़ने की कोई आशंका है तो वो चेक किया जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका जिस स्तर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ऐसा भ्रष्टाचार न्यायपालिका में मुझे नहीं लगता है कि है। जी, जस्टिस गोविंद माथुर, एक बस आखिरी सवाल। आपके मुताबिक इस समय जस्टिस फॉर ऑल और एक्सेसिबल जस्टिस, अफोर्डेबल जस्टिस देश के तमाम लोगों को मुहैया कराने के लिए कौन से 2 या 3 या एक जुडिशियल रिफॉर्म आपकी निगाह में सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले समझता हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का अर्थ केवल न्यायपालिका से न लिया जाए। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सामूहिक दायित्व है कि न्याय का निष्पादन शीघ्र हो। इसके लिए गवर्नमेंट इस बात को समझे कि उसको वो सारे कार्य वही करने हैं जो हमारे विधि के अनुकूल है, विधि के विरुद्ध नहीं है। हमारी कार्यपालिका को यह सोचना होगा कि वह इन सब चीजों को तत्काल एनफोर्स करे। और निश्चित रूप से जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, मुझे लगता है कि न्यायपालिका को कई महत्वपूर्ण अपने यहाँ पे कार्य उठाने आवश्यक हैं, कदम उठाने आवश्यक हैं। उनमें हमारे जितने भी अल्टरनेटिव मोड्स हैं उनको और अधिक तीक्ष्ण करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लोक अदालत हमारे यहाँ एक बहुत शार्प वेपन है आगे बढ़ने का, लेकिन अनुभव ये रहा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी और लोक अदालतें ये शोकेसिंग का माध्यम बन गई है, बजाय इसके कि रियल जस्टिस डिलीवरी करें। हमें ये कोशिश करनी होगी कि रियल जस्टिस डिलीवरी के लिए लोक अदालत को उपयोग में लिया जाए, पूरी तरह से उन्हें किया आगे बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि एक सूडो या फॉल्स नंबर दे करके इस बात के कि हमने 2 लाख मुकदमे तय कर दिए, 3 लाख मुकदमे तय कर दिए। क्योंकि जो नंबर दिया जाता है उसके आधार पर अगर मुकदमे तय हुए होते तो हमारे यहाँ अभी पेंडेंसी नहीं होती। इसलिए सबको गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि हम सिर्फ शोकेसिंग के लिए ना करें, वाकई में कार्य करें। एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ कि जिस वक्त मैं वकालत में आया था, एक बहुत इफेक्टिव गवर्नमेंट एडवोकेसी हुआ करती थी। पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एडवोकेट की बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और उसमें ऐसे वकील आते थे जो अपने आप में वरिष्ठ वकील होते थे, जिन्होंने बहुत काम किया होता था, और उनमें इस बात का दम होता था कि वो अदालत में पहले दिन ही जाकर के कह देते थे कि ये गलत हुआ है, आप इस सिलसिले के अंदर अपना उचित फैसला दीजिए, न्याय के अनुरूप फैसला दीजिए, या वो स्वयं उनका अवैधानिक चीजों को रद्द करवा देते थे। अब स्थिति ये है कि सरकारी वकील वो होते हैं जो अन्यथा न्यायालय में नजर नहीं आते, अचानक सरकारी वकील बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आजकल गवर्नमेंट की ओर से भी फीसेज हो गई है। तो ये न्याय के अंदर किसी प्रकार का सहयोग देने के, मुझे लगता है कि केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक मंच रह गया है। गवर्नमेंट को इस बात को सोचना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं की जगह श्रेष्ठ वकीलों को सरकारी वकील बनाए, क्योंकि उनका सबसे अधिक योगदान है। 90% लिटिगेशन गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट की ओर से
प्रॉपर असिस्टेंस हिंदुस्तान की किसी कोर्ट में नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह इस बात की जानकारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस गोविंद माथुर, आपने इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी इस राय से उनका मार्गदर्शन होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा, और हम आपको संपर्क करेंगे जब भी हमें जुडिशरी से जुड़े किसी भी मुद्दे पर एक गंभीर राय चाहिए होगी। मैं धन्यवाद आप। नमस्कार। नमस्कार। जुडिशरी से जुड़ी हर ऐसे मुद्दे, हर ऐसी बहस को लीगल ऑब्जर्वर आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट से हमें जरूर अवगत कराइए, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है, नागरिक से जुड़ा है। जुडिशरी संविधान के कस्टोडियन के रूप में है, और इस वक्त देश में जो गंभीर बहस चल रही है उसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।